Hello students, in the last class we had discussed regarding the aerobic respiration. I hope you have understood the topic. Now, in aerobic respiration what we have seen? We have seen that the carbohydrates means the glucose went under glycolysis and it formed pyruvic acid. Okay, then the pyruvic acid, फिर pyruvic acid further किस में convert हो चुका था? Acetyl coenzyme A. Then the acetyl coenzyme A went under Krebs cycle reaction and it formed molecule of carbon dioxide gas, molecule of water, and it has produced energy in the form of ATP. Okay, now if there is insufficient amount of carbohydrates, हाँ देखो हमारे बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं, हमारे बॉडी में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ हमने कार्बोहाइड्रेट्स का एक एग्जांपल देखा था. नाउ अभी जब कार्बोहाइड्रेट्स की इनसफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में, इफ़ देयर इज़ insufficient amount of carbohydrates in the body due to some exceptional conditions जैसे if we are fasting, अगर हमारा व्रत रहता है, या फिर if we are hungry, then that time what happen, the proteins, that time what will happen, the proteins and the lipids and the proteins will produce the energy. Okay, these lipids and these proteins are used for energy generation. Okay, so when the lipids, how the lipids are converted into energy? Now the lipids will be first converted into fatty acids. Lipids means fats. Okay, I will write here. Lipids means fats. Now these lipids or fats will be converted into fatty acids. Then after that it will be get converted, the fatty acids will get converted into acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle will produce energy in mitochondria. Okay, simple. Then how proteins will produce energy? The proteins will be converted into amino acids. Then the amino acids will be converted into acetyl coenzyme A. Then the acetyl coenzyme A by the process of Krebs cycle will produce energy in mitochondria. Okay, simple है. Fatty acids मतलब lipids and proteins, they goes under oxidation. Okay, goes through complete oxidation and it produces the energy. Okay, now हम anaerobic respiration देखते हैं. anaerobic respiration क्या है? The respiration which takes place in absence of oxygen is called as the anaerobic respiration. Means respiration जो in absence of oxygen carry out होता है, जो ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं हम? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, परफॉर्म होता है. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नाउ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है. ओके, ये 2 स्टेप्स कौन सी होती है? द फर्स्ट स्टेप इज़ द ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकंड स्टेप इज़ द फर्मेंटेशन. इन 2 स्टेप्स में क्या होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. ठीक है, नाउ क्या होता है, ये जो ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज will get converted into pyruvic acid
through the process of glycolysis. Okay, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ जो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम फॉर्म हुआ था, जो पायरुविक एसिड was formed during the process of glycolysis is then converted into organic acids and alcohol. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है. ना क्या हो रहा है? द ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. फिर जो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम फॉर्म हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है. जब पायरुविक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. और ये फर्मेंटेशन किसकी मदद से होता है? सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स की मदद से क्या होता है? ये फर्मेंटेशन अकर होता है. ठीक है, फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. समझ में आया आपको? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ glycolysis. Then the pyruvic acid is converted into organic acids and alcohol with the help of some enzymes. This is called as the fermentation, and in this way the process of anaerobic respiration is completed. कभी कभी क्या होता है, कुछ हायर प्लांट्स, एनिमल्स ये क्या परफॉर्म करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. कब करते हैं? जब ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो डिप्लीट होने लगती है सराउंडिंग में, उस टाइम ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे एक चार्ट दिया है. उस चार्ट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे कैरी आउट होती है और कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हम देखते हैं. ठीक है, ना फर्स्ट वी विल सी इन द erythrocytes and nucleus. What are erythrocytes? They are the red blood cells. Okay, RBCs. Okay, now the glucose will first through glycolysis will produce the pyruvic acid. Then from the pyruvic acid fermentation will occur, and in this lactic acid is produced. What we have seen that in fermentation, the fermentation from pyruvic acid, different organic acids and alcohol is produced. Okay, now in erythrocytes and in the muscle cells, the pyruvic acid is converted into the lactic acid. Okay, इस वक्त जब हम ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे मसल सेल्स में कब एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हुए रहते हैं. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. ओके, उस वजह से हमें क्या होता है? हम टायर्ड फील करने लगते हैं. तो ये जो टायर्ड हम फील करते हैं वो किसकी वजह से फील करते हैं? ये लैक्टिक एसिड की वजह से फील करते हैं. मीन्स जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम होती है उस टाइम हमारे जो मसल सेल्स है वो क्या परफॉर्म करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. और फिर इस लैक्टिक एसिड की वजह से कभी कभी क्या होता है? हमें पेन रियलाइज़ होता है. ओके, हमारे मसल्स में. देन सेकंड वाक्य है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होती है? ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में द ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द pyruvic acid, and this pyruvic acid will be get converted into different products like vinegar और vitamins में क्या होती है? ये कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, द ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू pyruvic acid and the pyruvic acid will get converted into vinegar and some vitamins. Okay, this occurs in the microorganisms. Okay, now
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऐसे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुविक एसिड will be get converted into vinegar and vitamins, and through this they will produce energy. Okay, now yeast में क्या होता है, yeast में the glucose will get converted into pyruvic acid, and this pyruvic acid will converted into alcohol. Okay, and the yeast will produce the energy. Okay, now from glucose pyruvic acid will be formed, and from pyruvic acid alcohol will be produced, and in this way the yeast will produce the energy. Okay, now कुछ सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है। कैसे, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो सीड होती है वो क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है। ओके, क्या हो जाता है, वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, उसकी वजह से क्या नहीं होता है, वहाँ पे डीप सॉइल में चली जाती है, उसकी वजह से जो एयर एक्सचेंज होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम उस सबमर्ज कंडीशन में क्या होती है, जो सीड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। ठीक है।